السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، اس وقت میں نے قرآن مقدس کی الگ الگ مقامات کی دو آیت کریمہ، ایک میں اجمال، دوسرے میں اس کی تفسیر اور کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنائی ہے۔ یہ مہینہ جس کی آج پہلی تاریخ ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کیا ترجمہ ربیع الاول کا؟ اس مہینے کو ربیع الاول کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان عدت الشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ مہینوں کی تعداد اور گنتی کل 12 ہے، 4 محترم مہینے ہیں۔ ثلاث المتوالیہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ایک مہینہ رمضان کا ہے۔ یہ 2 ربیع کے مہینے ہیں، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ مجھے باہر کے ملک سے ایک آدمی نے کل تقریباً نماز عشاء کے بعد ایک فون کیا کہ ہمارے دادا اپنے دوستوں کے ساتھ ربیع الاول کی جب پہلی تاریخ ہوتی تھی تو دکان کھول کر کے خاص خاص قسم کے لوگ سال میں ایک عمدہ ناشتہ کرتے تھے ربیع الاول کی پہلی تاریخ۔ تو کیا مول صاحب اس کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ تو چلے گئے، باپ بھی چلے گئے، ہم ان کی اولاد ہیں اور اب ہم بھی قبر کے قریب ہیں، ہماری اولاد ہیں اور ان کی بھی اولاد ہو گئی، یعنی 5ویں پیڑھی ہے۔ تو 5ویں پیڑھی کا باپ ربیع کی پہلی تاریخ کو خوشی سے ناشتہ کرتے تھے۔ کل رات کا مسئلہ ہے، تو اس کی کوئی اصل ہے؟ تو میں نے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر بڑے پیر کی کتاب اٹھائی بنیت الطالبین، اس میں مہینے وار فہرست لکھی ہے ربیع الاول۔ میں نے کہا آسان ہے، اس کتاب میں جلدی مل جائے گا۔ دیکھیے اللہ اور پیغمبر یہ بڑے علم کے مالک ہیں، اللہ کی ذات سے علم نکلا
पैगंबर के कल्ब अतहर में महफूज हो गया और नबी के कल्ब अतहर से उम्मत में आया। लेकिन हर बात हर आलिम को याद नहीं होती, वो किताब देखनी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है। तो गौसुल आजम ने अजीब काम किया है अपनी किताब में, अजीब इल्म था। अल्लाह अकबर। एक महीना शाबान का है, शाबान, इसको हम अपनी जुबान में सुबरात बोलते हैं ना। इसमें 5 हर्फ है, शीन, ऐन, बा, अलिफ और नून। तो गौसुल आदम ने लिखा कि इसका शीन शराफत पर दलील है, इसका बा बरकत पर दलील है, इसकी अलिफ उल्फत पर दलील है और इसका नून नूरानियत पर दलील है। कुल 29 हुरूफ है, अलिफ से या तक। हर हर्फ में एक खासियत है। इसीलिए कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अच्छे नाम रखो। 2 वजह से। नाम का असर इंसान की जात पर पड़ता है, नाम का असर इंसान की जात पर पड़ता है। अच्छे नाम रखो ताकि अच्छे असरात पैदा हो, एक वजह ये। दूसरी वजह ये है कि मैदान हशर में अल्लाह हर इंसान को उसके नाम के साथ और उसके बाप के नाम के साथ और उसके दादा के नाम के साथ पुकारेगा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कुसै इब्ने कलाब इब्ने मुर्रा इब्ने ज़हरा बिन अदनान तक सिलसिलाए नसब महफूज। कुल कायनात में इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बबरकत वो वाहिद जात है कि आदम से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पूरा वंशावली महफूज है। तो ये सवाल था, उसका जवाब उस किताब में देखा। तो चूंकि मैंने शाबान और रमजान और रजब के फदाइल इस किताब में पढ़े थे, तो शाबान में 5 हर्फ है। कोई इंसान अगर सुबरात का हक बजा लावे तो साल में 5 रातें हैं, 5 रातें, पूरे साल में 5 रातें हैं जो जाग करके इबादत में गुजार दे। हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हदीसों में फरमाया, जिस दिन सारे इंसानों के दिल मर जाएंगे उस दिन इस आदमी का दिल नहीं मरेगा। एक। दूसरी हदीस में फरमाया, मन अहियल लयालियल खम्स वजबत लहुल जन्नह। साल में 5 रातों में इबादत करके जाग करके गुजार दे, यह आदमी जन्नती है। ये नबी का बशारत वाला इरशाद है, किसी के घर की बात नहीं है। और नबी जी फरमाते हैं वजबत लहुल जन्नह। 3 रातें एक साथ आती है, तरविया की रात, अरफा की रात और बकराईद की रात। यानी बकराईद सुबह में है न अगली रात, उससे पहले की रात और उससे पहले की रात। 8, 9, 10 जिलहिज्जा की रातें, 3 रातें बहुत बड़ी, एक रमजान ईद की रात और एक शुभरात की रात। शाबान की 15वीं रात कुरान करीम में भी है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्लाह ताला ने इस रात की फजीलत कुरान में बयान की। 5 किस्म के गुनाह वो हैं कि अगर इससे तौबा न करे और गुनाह में बाकी रहे तो उसकी मग़फ़िरत नहीं, बाकी सबकी मग़फ़िरत हो जाती है। इसमें शाबान की एक 15वीं रात है। तो गौसुल आदम ने फरमाया कि सुबरात में इबादत करके रजील आदमी शरीफ बन जाता है, बेबरकती है। ये महीना बरकत दिलाता है। यह महीना वो है कि नफरतें हैं तो मोहब्बत पैदा करवा देगा। और नून, जब आदमी शरीफ बन गया
जब आदमी ऊंचे दर्जे का हो गया, जब आदमी की बरकतें आनी शुरू हो गई और जब आदमी में उल्फतें पैदा हो गई, तो अब अल्लाह उसको नूर ईमानी दे देगा। अल्लाह उसको नूर ईमानी दे देगा। किताब पढ़ने जैसी है, अपने घर में बसा लो, इसका मुताला करो, इसका स्टडी करो। गुजराती में भी है, उर्दू में है, अरबी में है, सबसे जाने तरीन अरबी में है। तो मैंने वो सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किताब उठाई, वो नियम। तो रबी का माना बहार की मौसम। साल के 11 महीने में ये महीना वो है जिसमें कायनात बहार में आ जाती है। साल के 11-12 महीनों में ये महीना वो है कि इंसान बहार में आ जाते हैं। साल के 12 महीनों में ये महीना वो है कि जन्नत बहार में आ जाती है। बहार जानते हैं, जब इंसान को खुशी हो और इसकी तबीयत में अजीब किस्म का नशात पैदा हो और मारे मोहब्बत के वो झूमने लगे, इसको बहार कहते हैं। इसको रबीउल अव्वल इसलिए कहते हैं कि कुल कायनात का खुलाफा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमीना के बतन से मक्का मुकर्रमा की वादी में आप आलम दुनिया में जलवा अफरोज हुए। इस वजह से ये महीना रबी का महीना है, बहार का महीना है। वो महीना कितना मुबारक, जिस महीने में आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। वो आमीना दुनिया की तमाम माओं में सबसे मोहतरम माँ हो गई। वो अब्दुल्ला के बच्चे आका का विलादत बासआदत दुनिया में हुई। तो ये महीना बड़ा मोहतरम है, बड़ा मुबारक महीना है, इसलिए उसको रबीउल अव्वल कहते हैं, पहली बहार। बाद में दूसरी बहार को रबीउल सानी कहते हैं, जिसमें सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिराने पीर बड़े पीर साहब की एक यादगार तारीख मनाई जाती है। मैंने कुरान मुकद्दस की 114 सूरतों में से सबसे पहली सूरत तिलावत के बाब में, जिसको फातिहतुल किताब कहते हैं, जिससे कुरान करीम का ओपनिंग होता है, जिससे कुरान करीम की तिलावत का आगाज होता है, इसलिए इस सूरत का नाम फातिहा है। फातिहा यानी ओपनिंग, इफ्तिताह, इब्तिदा, शुरुआत, आगाजी तिलावत अल्हम्दु शरीफ से होता है। इसमें 7 आयतें हैं, इसलिए उसको सबए मसानी कहते हैं। इसको सूरतुल शिफा कहते हैं, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों की शिफा इसमें है। इसको सूरतुल कंज कहते हैं, यानी खजाना ये है, अल्लाह के अर्श के खजाने से ये सूरत आई है। तो इसका नाम सबए मसानी। 7 आयत हैं कुरान की और नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। आप 2 रकात का कोल बांधो तो भी दोनों रकात में, 4 रकात का कोल बांधो तो भी चारों रकात में। नफल नमाज एक सलाम के साथ 8 रकात तहज्जुद की पढ़ सकते हैं। आका ने 8 रकात एक सलाम के साथ पढ़ी है, तो 8 रकातों में ये सूरत पढ़ी जाती है। एक सूरत है लेकिन नाम सूरतुल फातिहा, एक सूरत है दूसरा नाम सूरतुल शिफा, इसी सूरत का तीसरा नाम सूरतुल कंज, इसी सूरत का चौथा नाम सबए मसानी, इसी सूरत को वाकिया कहते हैं, इसी सूरत को शाफिया कहते हैं, इसी सूरत को हाफिजा कहते हैं। क्या मुबारक नाम कुरान ने दिए। एक सूरत के कई नाम बयान किए। मोहतम बिशान सूरत, 7 आयतें हैं। पहली 3 आयतें अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की तारीफ बयान करती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कितनी मोहतरम सूरत है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाते हैं 7 आसमान से, हमीदनी अब्दी, ओहो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह फरमाता है मदहनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी। एक एक आयत पर अल्लाह का जवाब आता है।
اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں پارٹنر ہے، میرا بندہ جو مانگے گا میں دوں گا۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے کی درخواست اور دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لینے کا طریقہ سکھایا۔ جب کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے، اسی لیے فقیر دیکھو پہلے سیلیوٹ مارے گا سیٹھ کو جو کرسی پر بیٹھا ہے، پھر اس کی تعریف میں بولے گا، پھر وہ دعائیں دے گا، اور بساست کے چہرے کے ساتھ کبھی حاجی صاحب کہے گا، کبھی سیٹھ صاحب کہے گا، عجیب عجیب الفاظ، کیوں؟ اس کو مائل کرنے کے لیے، اس کو نرم کرنے کے لیے، اس پر مہربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اپنے بندے کو اللہ کی ذات سے لینے کا طریقہ سکھایا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کل عالموں کا رب ہے۔ شروع میں بسم اللہ لے گیا، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن میں سورہ نمل میں یہ آیت کا جز ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی سورتوں کے شروع میں وہ قرآن کا جز نہیں ہے، بلکہ اس سے قرآن کریم کی تلاوت کی شروعات ہوتی ہے۔ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اہم کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ آقا گھر میں داخل ہوتے تھے بسم اللہ، آقا گھر سے نکلتے تھے بسم اللہ، آقا مسجد میں داخل ہوتے تھے بسم اللہ، کھانا شروع کرتے تھے بسم اللہ، کھانا ختم فرماتے تھے الحمدللہ۔ مومن کا ہر کام بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مکہ کے مشرک لوگ زمانہ شرک اور جاہلیت میں ہر کام بت کے نام سے کرتے تھے، کہیں لات کے نام سے، کہیں عزا کے نام سے، کہیں منات کے نام سے۔ تو آقا جی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے پروردگار کے نام سے کام شروع کرو۔ اسی لیے زندگی کے ہر حال میں آقا نے بسم اللہ پڑھی۔ کوئی 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہر مطلب میں اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کریں گے، ہر بیماری سے اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن 7 8 6 یہ خالی 786 مت لکھنا، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہیں اس کے کیا انوار اور برکات ہیں؟ ایک آدمی تھا، بیچارے کی زندگی دین سے دور تھی، ماحول نہیں ملا، غلط زندگی کی وجہ سے ایک اپنا ماحول تھا، اس کا انتقال ہوا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ عالم 3 ہے، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت۔ ہم عالم دنیا میں ہیں، یہ مرحوم عالم برزخ میں ہے، اور اس کے بعد تیسرا عالم آنے والا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ آخرت کا معنی بعد میں آنے والا، اور دنیا کا معنی پہلا عالم۔ ابھی درویش کا گزر، ایک اللہ کے کامل دوست، ایک ولی اللہ کا گزر اس قبرستان سے ہوا۔ پہلے اولیاء اللہ قبرستانوں میں چلا کشی کیا کرتے تھے، درویش قبرستانوں میں گزارا کرتے تھے، وہی کامل اللہ کے ولی ہوتے تھے۔ روکھا سوکھا کھا لیتے تھے، روکھا سوکھا، اور رات قبرستانوں میں گزارتے تھے۔ عجیب، وہ درویش ہوتے تھے، وہ اللہ کو پہچانتے تھے، وہ جب اللہ پر قسم کھا بیٹھتے تھے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا تھا۔ جن کی زندگی قبرستانوں میں گزرتی تھی، تو درویش کا گزر قبر پر ہوا۔ صاحب کرامت، ولیوں کی کرامت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے کہ نبیوں کے معجزے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے۔ کرامت الاولیاء یہ حق، اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے۔ دیکھا تو اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، بہت فکر سوار ہوئی، اے اللہ، بیچارہ آخرت کے اندر دنیا میں بھی دھکے ٹیلے کھاتا رہا، اور آخرت میں بھی اب قبر میں بھی سکون کی نیند نصیب نہیں ہوئی۔ ایک فکر سوار ہوئی، اولیاء اللہ کے دل میں پوڑن ہوتی ہے،
दुनिया की तकलीफ भी वो इंसानों पर बर्दाश्त नहीं कर सकते और आखिरत की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बहुत अफसोस किया, ऐ अल्लाह इसको क्यों कब्र में अजाब हो रहा है। फिर गुजर गए, चंद दिनों के बाद वापस इसी कब्रिस्तान में रात के सेपहर के वक्त दाखिल हुए और उसी कब्र के पास से गुजरे तो देखा कि ओहो, यह तो नेमतों की और फूलों की और अनवार की बारिश में टहल रहा है। पहले अजाब का हाल था, अब हाल ये हो गया। बाज़ अल्लाह के वली वो होते हैं जिनके ऊपर कश्फ होता है और वो दिखता है, हर एक को ये नजर नहीं आता। ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। तो वो नेमत की देखी, अजाब देखा तो अल्लाह से दुआ करके नहीं पूछा कि क्यों, लेकिन नेमत देखी तो अल्लाह ताला से पूछ लिया कि बारी ताला इस बंदे का ये हाल चंद महीनों पहले था, आज ये हाल है, आखिर वो कौन सी चीज है जो आपने इसको अता की और उसकी मुसीबत नेमत पे बदल गई, अजाब रहमत पे बदल गया और तकलीफ बागात की सूरत में बदल गई। ऐ अल्लाह जरा मुझ पर वो खोल दे। दुआ की, देखना कभी भी मुसलमान की दुआ रद्द नहीं होती है, काफिर की भी दुआ दुनिया में रद्द नहीं होती है। अदहबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतातुम बिहा, कुरान में है, अल्लाह फरमाएंगे उन बागियों से, उन मुशरिकों से, उन अल्लाह के नाफरमानों से जो अल्लाह के तौहीद के मुनकिर हैं, अल्लाह उनकी भी दुनिया में कबूल करता है। और कुरान में है अदहबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतातुम बिहा, तुमने दुनिया में मांगा वो हमने तुमको दिया, ऐश उड़ा लिए, अब तुम्हारे हिस्सा आखिरत में खत्म हो गया। हर एक की कबूल होती है। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बास मादल मौत के दिन जब हश्र नश्र का आलम होगा, आदम से लेकर कयामत तक का आखिरी इंसान उस मैदान में जमा होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, अल्लाह बड़े जलाल में होंगे। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह कहेगा आज कौन बादशाह, आज किसका चलन, आज किसकी हुकूमत, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। उस वक्त कायनात का एक हसीन फर्द, अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग बाला बरतर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, अल्लाह बहुत हो गया, काफिर के हक में भी, मुशरिक के हक में भी, मवाहिद के हक में भी, मुर्तद के हक में भी, अल्लाह जना हिसाब शुरू कर दो, हिसाब शुरू कर दो। ये पहली सिफारिश, ये सिर्फ हमारे आका जुबान खोलेंगे। काफिर के हक में भी, मुशरिक के हक में भी, ऐ अल्लाह कब्र के अजाब भुगत करके आए, लेकिन मैदान महशर की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, हिसाब किताब शुरू फरमा दो, जो होना होगा आगे होगा, लेकिन हिसाब तो शुरू कर दो। इसको शफाअत कहा जाता है। 5 शफाअतें हैं, 5 शफाअतें, जिसका सबसे पहला हक और जिसके सबसे पहले लायक इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। हर काफिर की गर्दन पर मोहम्मद का एहसान, हर मुशरिक की गर्दन पर मोहम्मद का एहसान। तो हम और आप पर आका के कितने बड़े एहसानात हैं, जब वो भी आका के एहसान से सुबुकदोश नहीं। अब इन्होंने पूछ लिया अल्लाह से, अल्लाह ने कश्फ फरमाया, ठीक है मेरा बंदा, तू मेरा दोस्त है और तूने ये नुक्ता पूछा है मखलूक के फायदे के लिए कि आखिर मुसीबत नेमत में क्यों बदल गई, दोज़ख जन्नत में क्यों बदल गई, जहन्नम जन्नत में क्यों बदल गई। कब्र में जन्नत जहन्नम शुरू हो जाता है, सारा सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है।
तो बारी ताला ने इस बुजुर्ग के दिल पर कश्फ फरमाया, इल्हाम फरमाया। ये भी नबूवत का 46वां हिस्सा है। अच्छे ख्वाबात, ये बशारत है, जो बशारतें दी जाती है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। अब अल्लाह ताला ने कश्फ फरमाया कि ये तो मर गया, एक छोटा बच्चा छोड़कर आया था जो यतीम हो गया। नाबालिग औलाद मुसलमानों की जब बाप का साया चला जाता है तो वो यतीम है बालिग होने तक। और आका ने फरमाया, खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन युहसनु इलैहि, मुसलमानों के घरों में सबसे चमकता दमकता वो घर है कि जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाता है। शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन युसाउ इलैहि, मुसलमान मोहल्ले में, मुसलमान घरों में बदतरीन घर है वो जिसमें कोई यतीम बच्चा हो और उसके साथ बदसलूकी की जाती है। हमारे नबी जी ने फरमाया, कोई यतीम बच्चा है, इसका बाप चला गया, इसने उसको उठा लिया और गोद में ले लिया और उसको कुछ ले देकर खुश कर दिया और उसके सर के ऊपर हाथ फेरा। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले में एक गुना माफ, एक दर्जा बुलंद और जन्नत के अंदर एक दर्जा अल्लाह उसका बुलंद करेंगे। क्या यतीम को इज्जत दी है माशरे ने? क्यों? अम्मल यतीम फला तक़हर ववजदक दाल्लन अलम यजिदक यतीमन फआवा। नबी जी आप भी यतीम थे, यतीमों को माशरे ने बहुत इज्जत का मकाम दिया। तो बाप तो मर गया, तालीम की जिम्मेदारी बाप की है। अभी मैंने बच्चों को एक बाप पढ़ाया बुखारी शरीफ में। अगर माँ बाप फिक्रमंद नहीं है तो समाज के वडील फिक्र करे, समाज के वडील फिक्रमंद नहीं तो कौम का पटेल और चौधरी जिम्मेदार हैं कि लोगों को दीन सिखाए। अगर इसने नहीं सिखाया, कयामत के मैदान में उसका गरेमन पकड़ा जाएगा। हम सियासत के चौधराहट करने वाले नहीं हैं, हमारी जिम्मेदारी है बाबुल इज्जतु लिल इमाम व तालीमिहिम, तालीम देने की जिम्मेदारी कौम के सरबराहों की है। इसलिए पूछा जाएगा, कोई इससे छूटने वाला नहीं। यतीम बच्चा था, माँ होती है, बाप तो चला गया, क्या बेटा जाओ मदरसे में जाओ पढ़ो हो, कि बेटा मदरसे में गया और उसने उस्ताद से सीखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाह का हाफिज हो गया। तो बारी ताला ने उस बुजुर्ग से फरमाया, ए मेरे नेक बंदे, मेरे मुकद्दस कलाम की एक छोटी सी आयत करीमा इस मरहूम बाप के बेटे ने सीख ली और इसके बेटे ने जब अपने सीने में बिस्मिल्लाह महफूज कर ली तो उसके बेटे की सीने की बिस्मिल्लाह की हिफाजत की वजह से, उसके हिफ्ज कर लेने की वजह से हमेशा के लिए इसके बाप को कब्र में होते हुए अजाब को मैंने बिस्मिल्लाह की बरकत से खत्म कर दिया। यह है बिस्मिल्लाह। इसीलिए पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाने से पहले, सोने से पहले, मस्जिद में दाखिले से पहले बिस्मिल्लाह। दुकान खोलो, दुकान, अभी मैंने एक रिवायत पढ़ी, दुकान में खैर और बरकत के लिए कोई आदमी दुकान का शटर खोलने से पहले पढ़े बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और कुल वल्लाहु अहद की सूरत, अल्लाह ताला उसकी दुकान में बरकत पैदा कर देगा। ये कुरानी वजीफा है। और कितना शॉर्ट, पहले नबी पर दुरूद है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह और सूरह इखलास पढ़ लो, उस दुकान में खैर और बरकत होगी। तो ये बसमला है। फिर 3 आयतों में अल्लाह की हम्द व सना है। मैंने आयत जो पढ़ी थी वो ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये बंदे की दरखास्त है, बंदे की दुआ है, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता बता दे। सीधा रास्ता किसे कहते हैं? तो देखो, कुरान में कोई सवाल पैदा हो तो कुरान में उसका जवाब मिलेगा। इसीलिए कोई सवाल पैदा हो तो कुरान से जवाब लेने की कोशिश करो। अगर कुरान में सराहतन जवाब नहीं है चोखा चोखा, तो 10 लाख हदीसों में जवाब मिल जाएगा।
10 लाख अहादीस में सराहतन जवाब नहीं आया तो फिर अब्दाल में तलाश करो, फिर कुतुब में तलाश करो, फिर गौस में तलाश करो और फिर ख्वाजा में तलाश करो। मेरी आज की बात का खुलासा ये 4 चीजें हैं, इसको हमें समझना है। एक बहुत बड़ा दावा मैंने दायर किया है, कुरान कोई भी सवाल का हल कुरान में है। जिस आखिरी इंसान पर कयामत कायम होगी उसका उस वक्त का आखिरी सवाल, जिसके बाद खुदा कायनात खत्म कर देंगे, इसका हल अभी कुरान में है न है। चोखा नहीं मिलता है तो 10 लाख हदीसें आका की है, वहां अगर जवाब सराहतन नहीं मिला तो फिर अब्दाल में तलाश करो, फिर कुतुब में तलाश करो, फिर गौस में तलाश करो और फिर ख्वाजा में तलाश करो। नहीं समझे? अभी समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसका जवाब कुरान में है। अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, आगे है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह सीधा रास्ता दे। किनका रास्ता? जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। इनाम किसे कहते हैं? कोठी बंगले को कहते हैं, कारोबार बिजनेस को कहते हैं, दौलत की रेल तेल को कहते हैं। नाइम, दिल का सुकून और दिमाग का चैन। इसलिए जन्नातिन नाइम, आखिरत में अल्लाह चैन के बागत में दाखिल करेगा। करोड़ों खरबों अरबों हो लेकिन इंसान को सुकून न हो, इंसान को चैन न हो तो धूल पड़ी उस दौलत पर इज्जतों के अंबार हो लेकिन सुकून की नींद नसीता हो और चारों तरफ बॉडी काट के पहरे हो तो उस इंसान को नाइम नहीं कहा जाएगा। यह नेमत का परवरदा नहीं है, वो तो आगे पीछे दाएं बाएं के लोगों की वजह से सलामत है। वरना सैयदना फारूक आजम को देखो, अबू बकर सिद्दीक को देखो, उस्मान अली को देखो, हसनैन करीमैन को देखो, क्या जिंदगी थी इन हज़रात की। कभी कोई बॉडी कार्ड नहीं, लेकिन हर मुसलमान के आगे और पीछे, दाएं और बाएं अल्लाह ने फरिश्ते लगाए हैं। ये फरिश्ते थोड़ी देर के लिए हट जाए तो इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाए, और वो कुरान में है। यहफ़ज़ूनहु मिन बैनि अयदीहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। अगर किसी इंसान को 2 पुलिस वाले मिल गए, वो भी हमारे पैसे से, हुकूमत किनके पैसों से? हमारे टैक्सों से तो उनको चौकी देती है, हमारे टैक्सों से तो उनको दंड देती है, वरना वो कहां से लाते हैं? तो इंसान फूला नहीं समाता। लेकिन मालिक ज़ुल जलाल वल इज्जत ने अपने मुकद्दस कलाम में फरमाया, तेरे आगे मेरे पहरेदार फरिश्ते हैं, तेरे दाएं मेरे पहरेदार फरिश्ते हैं, तेरे बाएं मेरे पहरेदार फरिश्ते हैं, जो तेरी आगे से हिफाजत करते हैं, जो तेरी दाएं से हिफाजत करते हैं, जो तेरी बाएं से हिफाजत करते हैं। अल्लाह ने एक अजीब निजाम चलाया। अल्लाह का नेमत वाला तबका कौन? तो कुरान में सवाल है तो जवाब भी है। अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, सबसे ऊंचा दर्जा इनाम पाने वाला अंबिया का, फिर सिद्दीकीन का, फिर शुहदा का और फिर सालिहीन का। नबियों में पहला आने में दुनिया में आदम है और अखीर में कुल कायनात का खुलासा खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन आकाए मक्के मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात बाबरकत है। 313 रसूल है। पहला रसूल नूह अलैहिस्सलाम है और आखिरी रसूल हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत वल जमात, हर सुन्नी मुसलमान का अकीदा यह है, नबी ऐलान नबूवत से पहले भी मासूम, नबी ऐलान नबूवत के बाद भी मासूम। नबी जन्नत की मिट्टी से पैदा होता है। हर इंसान की ड्यूटी में उसकी पैदाइश की मिट्टी खुदा डाल देता है और उसकी मौत की कब्र की मिट्टी भी खुदा डाल देता है। पैदाइश की मिट्टी भी खुदा ने डाल दी और कब्र की मिट्टी भी खुदा ने डाल दी, और नबी जन्नत से आता है और जन्नत में चला जाता है। आपको दुनिया में जन्नत का नजारा करना हो तो मदीना मुनव्वरा में आका जिस जगह में आराम फरमाते हैं उसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है। यह हिस्सा जन्नत से उठाकर मदीने में रख दिया है। एक कौल ये है। दूसरा कौल ये है, यही हिस्सा है तो दुनिया का,
बेआईनी पूरा उठाकर खुदा जन्नत में शामिल कर देंगे, इसलिए कि नबी जन्नत की मिट्टी से आया है और नबी जन्नत की मिट्टी में आराम फरमा जाता है। और फरमाते हैं दुनिया में मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना में रौज़ा अक़दस जगह है, वो जगह अल्लाह के अर्श के मुकाबले में भी इज्जत वाली है। अल्लाह के अर्श के मुकाबले में भी अगर मोहतरम जगह कोई है तो वो जगह है जहां इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। और हमने से हर एक के पीर और जुमेरात तो कारगुजारी आका को पेश होती है, ये आपका उम्मती है हर सोमवार को और हर जुमेरात को, इसीलिए सोमवार और जुमेरात को कब्रिस्तान जाया करो। आम दिनों में भी जाओ, लेकिन सोमवार और जुमेरात को तो कब्रिस्तान जाया करो। कब्रिस्तान जाने की आदत बनानी चाहिए। अल-क़ब्र इम्मा रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, ये जन्नत का बगीचा बन जाएगा, और हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार, या जहन्नम का गड़ा बन जाएगा। इसीलिए कब्रिस्तान जाया करो ताकि मौत की याद ताजा हो। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़िन्नूरैन है, इस कायनात का वो हसीन सपूत है। दो नबियों हजरत लूत ने और हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी के समेत हिजरत की। नबियों के बाद किसी नबी के उम्मती को यह खुसूसियत नहीं है कि अपनी बीवी के साथ हिजरत की हो। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान इस दुनिया का वो इंसान है कि जिन्होंने आका की बेटी रुकैया के साथ हबशा की हिजरत की, फिर मदीने की हिजरत की। उस्मान इस कायनात का वो हसीन सपूत है। 82 बरस की उम्र नसीब हुई, 12 बरस कम 12 दिन खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। आका ने अपनी बेटी रुकैया उस्मान के निकाह में दी, बड़ी बेटी ज़ैनब अबुल आस के निकाह में दी, रुकैया उस्मान के निकाह में दी। इनसे आका का पहला नवासा अब्दुल्ला इब्ने उस्मान पैदा हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद विसाल कर गए। ये आका का पहला नवासा है। और आका की एक और नवासी है उमैमा, यह हजरत अली से उमैमा, लेकिन लोग इनको जानते नहीं। एक उमैमा है और एक अब्दुल्ला है, ये नवासी पहले बेटी से, इसलिए कि बेटी के बेटे को नवासिया कहेंगे। तो रुकैया है, ज़ैनब का निकाह अबुल आस से हुआ, रुकैया का उस्मान से हुआ। उस्मान का गज़वाए बदर के मौके पर हजरत रुकैया का विसाल हुआ। आका बदर के मैदान में है, इधर बेटी का विसाल मदीने में होता है। नबी जी ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से फरमाया कि उस्मान तुम मदीने में रहो, रुकैया बीमार हैं, इनकी तीमारदारी करो। मालूम यह हुआ कि औरत बीमार है, शौहर को उसकी हक की ताबीरदारी करनी चाहिए और उसकी वजह से घर में ठहरना पड़े तो ठहरना चाहिए, इलाज करना चाहिए। आका ने बदर में उस्मान को नहीं आने दिया, हालांकि बदर वो मारिका था कि आका फरमा चुका। अल्लाह कुरान में फरमाता है अमलू मा शि'तुम क़द गफ़रतु लकुम, बदरियो आज के बाद तुम्हें मन फावे वो करो, हमने तुमको माफ कर दिया। आका ने रुकैया की वजह से रोक लिया था। अब इंतकाल हुआ, आका बदर में है, यहां रुकैया अल्लाह की रहमत में मक्की में आराम करती। आका ने आने के बाद उस्मान को बुलाया। अभी जिब्रील आसमान से आए थे और अल्लाह ने आसमानों पर उम्मे कुलसूम का निकाह, ए उस्मान मेरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह, तूने रुकैया को जो मेहर दी थी, ऐसी महर के बदले में आसमान पर जिब्रील खबर लेकर के आया कि अल्लाह ने मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्मे कुलसूम उस्मान के निकाह में दे दो। कायनात में एक रिश्ता यह है जो आसमानों पर हुआ, यह हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी उम्मे कुलसूम। और हजरत अली की रिवायत है, अली को जानते हैं, मैंने इसी मस्जिद में सैयदना अली इब्न अबी तालिब के एक ज़ियारत में मनाकिब बयान किए थे। आका ने फरमाया अन मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अली फातिह खैबर है। 18 आदमी मिलकर कुएं पर रखी हुई चट्टान को जो उठाते थे, अली इब्न अबी तालिब ने एक हाथ से खींच करके वो चट्टान उठा करके फेंक दी थी। वो अली जिनको शेर खुदा कहा जाता है, वो अली
جو بچوں میں اسلام لانے میں سب سے پہلے ہیں وہ علی، جنہیں آقا نے ابو تراب کہا وہ علی، جن کا بڑا بیٹا حسن ہے وہ علی، جن کا دوسرا بیٹا حسین ہے وہ علی، جن کا تیسرا بیٹا محسن ہے وہ علی، جن کی بیٹی زینب ہے، جن کی بیٹی رقیہ ہے، جن کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ حضرت فاطمہ نے عجیب کام کیا تھا، اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام سے رکھے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کی 6 اولاد ہوئی، حسن، حسین، محسن، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ آقا کی بیٹیاں بھی یہ اور آقا کی نواسیاں بھی یہ، بیٹیوں کے نام بھی ہو، نواسیوں کے نام بھی ہو۔ اسی لیے مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ نبی کے خاندان کے نام گھر میں لے آؤ، نبی کے گھرانے کے نام گھر میں لے آؤ۔ یہ بھی نبی سے محبت کی ایک علامت ہے۔ نبی کے دشمنوں کے نام گھروں میں نہ لے آؤ، اپنی اولادوں کے نام سادہ رکھا کرو۔ بس ہمارے لیے نبی کا جیون ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس پر مجھے یہ یاد آ گیا کہ حضرت عثمان بن عفان، پورے مدینے میں کہیں میٹھا پانی نہیں تھا، ایک یہودی کے پاس تھا، بیر روما۔ حضرت عثمان سے آقا نے فرمایا کوئی ہے خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے، من پھاوے ایسا بھاؤ وہ لیتا تھا۔ حضرت عثمان نے 35,000 درہم خرچ کیے اور وہ کنواں مسلمانوں کو وقف کیا۔ غزوہ تبوک کے دن آقا نے مال مانگا، ضرورت تھی، لوگ تنگی میں مبتلا تھے۔ جب لوگ تنگی میں مبتلا ہو تو مسلمانوں کا مال خرچ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ مانگرول کی سرزمین وہ ہے کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں تنظیموں نے، اداروں نے انفرادی طور پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ جیون کام آتا ہے اور وہی لیا دیا انوار اور برکات لے آتا ہے۔ بمبئی جیسے شہر میں مسجدیں نہیں کھلی اور ہم یہاں عیش و عشرت کے ساتھ اللہ کے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس پر دن میں 24 گھنٹے میں 2 رکعت صلاۃ و شکر پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نعمتوں کی بارش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انعام یافتہ طبقے کے لوگ 4 ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ انبیاء کل رسول 313، 1.25 لاکھ انبیاء، اور سب کے سردار اور کل کائنات کا خلاصہ خاتم الانبیاء والمرسلین، افضل الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سارے نبی جب آقا کو اپنا نبی مانے، دیکھو ایک بات یاد رکھو، کوئی نبی کسی نبی کا نبی نہیں ہوا، لیکن ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ کے بابت اللہ نے قرآن میں سارے نبیوں کو کہا کہ جب تک ان کی نبوت کو تم تسلیم نہیں کرو گے، تم میں سے کسی ایک کی نبوت میرے یہاں تسلیم نہیں۔ کوئی نبی کسی نبی کا نبی نہیں، ہمارے نبی سب نبیوں کے نبی ہیں، سب نبیوں کے امام ہیں۔ اس لیے معراج والی رات میں امامت آقا سے کروائی، آدم سے نہیں کروائی، انبیاء۔ پھر صدیقین، ابوبکر صدیق اکبر ہیں، علی بن ابی طالب صدیق اکبر ہے، عورتوں میں عائشہ صدیقہ صدیق اکبر ہے، صدیقہ ہے، ان کو صدیقہ بنت صدیق کہتے ہیں، بیٹی صدیقہ، باپ صدیق۔ اور ابوبکر صدیق اس کائنات کا وہ حسین فرد ہے کہ کل انبیاء اور رسولوں کے بعد جن کے صدقے میں دنیا باقی رہی وہ ابوبکر تھے۔ خیر ان کے بڑے مناقب ہیں صدیقین۔ پھر شہداء میں شہداء کربلا، شہداء احد، شہداء بدر، شہداء احزاب۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو 27 مرتبہ میدان میں اترنا پڑا، 56 مرتبہ سرائے بھیجے، جماعتیں بھیجی، لیکن 1127 سے زیادہ انسانوں کا قتل نہیں ہوا۔ 23 سال میں 13 سال ہجرت کے بعد جب حالات کے 10 سال ہجرت کے بعد جب حالات کے تھے، بدر پہلا، احد دوسرا، احزاب تیسرا، پھر بنو المصطلق، یہ غزوات جو ہوئے، طائف، حنین، فتح مکہ، خیبر، ان تمام کو ملا کر 1127 سے زیادہ مارے نہیں گئے۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے اور اسلام امن و سلامتی کے ساتھ پھیلا ہے۔ شہداء امت سیدنا امیر حمزہ، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا عبداللہ انصاری، حضرت مصعب بن عمیر۔ صحابہ میں ایک صحابی ایسے تھے جو اللہ کے نبی کی شکل ملتی تھی،
हकीकी शक्ल तो मिल नहीं सकती, बल्कि आका के रूखे अनवर, आका के रूखे अनवर। साहबा फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, हम कभी टिकटिकाई नजर से आंखों में आंखें डाल करके आका को देख नहीं सके थे। वो जमाल था, वो हैबत थी। आका का रुआब 2 महीने की मसाफत की दूरी पर चलता था। आका का रुआब 2 महीने की मसाफत की दूरी पर चलता था। और आका जब बयान देते थे, अगले नाटों के दरमियान में कोई हिस्सा खाली था और नूर निकलता था और पूरे कमरे की दीवारें आपके कलिमात के नूर से मुनव्वर हो जाया करती थी। अब मैं आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, एक मर्तबा तारीख रात थी और मुझे कोई चीज सीने की जरूरत थी, सहपहर का वक्त हो गया था, सुई तलाश करती थी, एक रिवायत में मिलती नहीं थी। आका तशरीफ लाए, आपके नूर से मैंने वो खोई हुई सुई को तलाश कर लिया। दूसरी रिवायत आयशा फरमाती है कि सुई में धागा पिरोना था और अंधेरे की वजह से मैं धागा नहीं पिरो सकती थी। आका के तशरीफ लाने पर मैंने आसानी से सुई में धागा पिरो लिया। साल में आका ने फरमाया, देखो 3 काम किया करो सोने से पहले। बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा घर का बंद करो, एक काम भी। दूसरा काम चिराग बुझा करके सोया करो। और तीसरा काम यह है, वधारे की लाइटें जो है उसको आदमी बंद कर दे और बर्तन खुला जिसमें खाने पीने की चीजें उसको ढांका करो। और हदीस में तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, जो दरवाजा बिस्मिल्लाह से बंद कर दिया कभी शैतान इस घर में नहीं आएगा, जिन्नात कभी भी नहीं आएगा। कितना शॉर्ट काम है, खाली बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद कर दो, शैतान कभी भी नहीं आएगा। जिसको आका पर यकीन है, जो नबी का पक्का उम्मती है और उसने बिस्मिल्लाह नबी की इस हदीस की वजह से पढ़कर बंद किया, अल्लाह की कसम कायनात इधर से उधर हो सकती है, मेरे नबी का फरमान अपनी जगह से हट नहीं सकता। दूसरा काम क्या करो, चिराग वधारे के बुझा दिया करो। उस जमाने में दिया होता था और दिया रोशन करते थे। आज तो लाइटें हो गई, लेकिन वधारे की लाइटें मत रोशन किया करो, उसको बुझा दो। और तीसरी खास बात जो कहना चाहते हैं, खाने पीने के बर्तन ढांप दो। कुछ भी ढांपने का ना हो तो मिसवाक खड़ी रख दो खाली। साल में एक वबा चलती है, साल में एक वबा चलती है हर साल। और रात को हर खुले बर्तन के अंदर जिसमें खाना पीना हो दाखिल हो जाती है और इंसान उन बीमारियों का शिकार होता है जो लाइलाज होती है और उसका कोई इलाज नहीं। ये हमारे नबी जी की खबर है। हमारे नबी जी कितनी इंसानियत की हमदर्दी फरमाते थे। सिद्दीकीन, शहादा, सालिहीन उम्मत जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अब सालिहीन में 4 तबके हैं, जो मेरी बात का खुलासा है, जो मैं आपको पेश करना चाहता हूं। सालिहीन उम्मत में फिर 4 जमातें हैं। एक अब्दाल है, एक कुतुब है, एक गौस है, एक ख्वाजा है। ये सिलसिला विलायत है। अभी दुनिया में 40 अब्दाल मौजूद है, इस पर ईमान है हमारा। एक अब्दाल जब दुनिया से चला जाता है तो कुतुब अब्दाल की जगह ले लेता है, और अब्दाल के नीचे कुतुब लाखों की तादाद में हो सकते हैं। ये तकसीम अल्लाह की है। हम ओहदे तकसीम करते हैं कि ये सेक्रेटरी ने, ये प्रमुख ने, ये उप प्रमुख। ये एक बातिनी निजाम है जो नजर में नहीं आता। इसी से दुनिया चलती है, इसी से दुनिया चलती है। लेकिन लोग जाने तो सही कि अब्दाल किसे कहते हैं। अच्छा, लोग उनको पहचान नहीं सकते। सदियों में या 10 सदियों में या 5 सदी में एक डिक्लेयर हो जाता है, इसलिए कि अगर वो डिक्लेयर हो गया तो लोग मार डालेंगे। इनके अनवार, इनके बरक़ात, इनके फयूज इस कदर ज्यादा होते हैं कि आदमी उनको जीने न दे। इसीलिए आपने हरमैन के अइम्मा को देखा होगा, कितनी सिक्योरिटी में रहते हैं। लोग मुलाकातों में लिखने फिरने में इनको मार डाले, जिंदगी तंग कर दे। हर अच्छे इंसान को इनसे बरकत लेने के लिए, इनसे दुआ लेने के लिए, ये अब्दाल 40 है, ये जमीन के खूंटे हैं और इसी से कायनात का निजाम कायम है। जिस दिन 40 को खुदा उठा लेगा, आसमान टूट करके जमीन पर गिर जाएगा। ये पहला सिलसिला अब्दाल का है, आज दुनिया में मौजूद है, लेकिन इंसानी नजरों से ओझल है अब्दाल। फिर कुतुब का दर्जा है।
जो इनसे नीचे के हैं। जैसे अंबिया सब पर हक, लेकिन 5 नबी और 5 में हमारे आका सबसे बरगुज़ीदा, इस तरह अब्दाल। फिर कुतुब में जिसकी सलाहियत अब्दाल पने की है, तो अल्लाह एक अब्दाल की मौत पर कुतुब को अब्दाल का दर्जा दे देता है। इनके नीचे गौस है जो लाखों करोड़ों की तादाद में हो, लेकिन गौसियत का इमाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महमूद सुबहानी, पीराने पीर, बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये अंदर के ओहदे और मर्तबे हैं जो मिलने की बुनियाद इंसान के मुजाहदे हैं। सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर साहब ने 15 साल मदरसों के इल्म पढ़े हैं और 25 साल जंगलात में वनवास किया है। एक इल्म जागिरी होता है और एक मारिफत का इल्म होता है। मारिफत का इल्म हासिल करने के लिए लोगों से कटना पड़ता है और जंगलात के सफर करने पड़ते हैं। तो गौसुल आजम ने 25 साल जंगलात का वनवास किया है और 15 साल मदरसों का इल्म हासिल किया। ये कायनात का वो हसीन फर्द है जो 40 बरस स्टूडेंट रहा, 40 बरस तालिब इल्म रहे, 40 बरस विद्यार्थी रहे और जिंदगी के 51 बरस अल्लाह ने काम के दिए। 91 बरस की जिंदगी नसीब हुई। 91 100 में 9 कम, 91 ईयर इनकी जिंदगी की कुल उम्र और काम का जमाना 51 बरस और सीखने का जमाना 40 बरस। इल्म का कोई किनारा नहीं है। अजीब चीज अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। यह गौसियत के सरखेल इमाम है, लेकिन हासिल किया तो कैसा? वनवास के 3 साल में पहला साल 2 मरतबा खाना मिलता था, दूसरे साल में 1 मरतबा खाना मिलता था और तीसरे साल में खाना नहीं मिलता था। जंगल के दरख्तों के पत्ते चबा लेते थे। ये इनकी 3 किताबों में लिखा है। हुयूज़ यज़दादी, फुतुहुल गैब, बुनियतुत तालिबीन। पढ़ो, इब्तिदान हालात लिखे हैं। जब ये बातीनी मेहनत होती है तो इंसान का ज़मीर उस पर झुकता है, कल्ब झुकने पर मजबूर होता है। ये मुजाहदे और ये काम अल्लाह के साथ ताल्लुक, अस्सलातु हिय सिलतुन बैनल अब्दि व रब्बिही, अल्लाह से कांटेक्ट नमाज से पैदा होता है। अस्सलातु हिय सिलतुन बैनल अब्दि व रब्बिही, अल्लाह और बंदे के दरमियान में ताल्लुक नमाज से कायम होता है। इसलिए बंदों को फरमाया कि दिन में 5 मरतबा तुम नमाज पाबंदी से अदा करो ताकि अपने रब से जुड़े रहो। अपने रब से जुड़े रहो। जो आदमी नमाज से दूर रहा वो रब से कट गया और रब से जुड़ने के लिए नमाज अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, ये मोमिनों को मेराज है, बुलंद दर्जे दिलाने वाली है। अस्सलातो कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आका फरमाते हैं मेरा उम्मती दिन में 5 मरतबा 5 नमाज के लिए 5 वुजू करेगा, इनके आज़ा चमकेंगे और मैदान महशर में आदम से कयामत तक के इंसान होंगे, लेकिन मेरे उम्मतियों के वुजू के आज़ा की चमक से मैं पहचान लूंगा कि ये मोहम्मदी, ये चमकेंगे, ये आज़ा, चेहरा चमकेगा, हाथ चमकेगा और इंसान के मुंह से खुशबू फैलेगी। इसीलिए नमाज रखी गई। दुनिया आखिरत के मसाइल का हल इसमें रखा गया। सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान इस उम्मत का वो पहला इंसान है कि जिन्होंने 1 रकात में पूरा कुरान खत्म किया था और करते रहते थे। पूरी रात इबादत में, पूरा दिन रोजे थे। साल में 5 रोजे नहीं रखते थे, बाकी पूरा साल रोजे रखते थे। और बाल का हल क्या था जानते हैं? आखिरी बात कहकर बात खत्म करूं। मदीने में कहत आया, दुष्काल पड़ा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन और इतना भारी दुकान के भूखमरा फैल गया। लोगों ने कहा अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन जरा कुछ दुआ बुआ करो, हल करो, बहुत अब तो तंगी आई। हजरत अबू बकर ने वज्र में कह दिया, आज शाम से पहले अल्लाह तुम्हारा मसला हल कर देगा। खलीफतुल मुस्लिमीन थे, नबी का नाइब,
اسی لیے اللہ کے نبی کے قدموں میں جگہ ملی. اللہ اکبر کہہ دیا اللہ شام تک مسئلہ حل کر دے گا. حضرت عثمان ابن عفان کے 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے ملک شام سے چلے تھے اور شام کو مدینہ پہنچے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مال آیا شام سے مدینے میں، عربوں میں تجارت کی منڈی نہیں تھی، شام سے مال آتا تھا. شام سے مال آیا تو مدینہ کے سارے ویپاری آ گئے حضرت عثمان کے پاس. بھاؤ بولو، کیا 1 کے 2، کیا 1 کے 2، کیا 1 کے 3، کیا 1 کے 4، کیا 1 کے 5. جتنے بڑے بڑے ویپاری تھے سب 5 پر آ کر ٹھہر گئے. عثمان نے کہا نہیں، سودا منظور نہیں ہے، 1 کا 5 منظور نہیں. تو کہا ہو تو ہو گئی، اب تو کون آپ کا مال بکری کرے گا، کون لے گا؟ 1000 اونٹ کا غلہ ہے، کون لے گا؟ تو کہا مجھ سے لینے والا کوئی ہے جو 1 کے 10 دیتا ہے. تو کہا دے دو، 1 کا 10 دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے والحسنۃ بعشر امثالھا، مسلمان تو 1 نیکی کر اللہ تجھے 10 دے گا. 1 مرتبہ سبحان اللہ کہو 10 مرتبہ. ایک طویل حدیث ہے، اس کا یہ موقع نہیں. اعمال 6 قسم کے ہیں. ایک عمل 2 چیزوں کو واجب کرتا ہے. خالی زندگی میں 1 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور یہ کلمہ باقی رہا، جنت واجب، جنت واجب. اور 1 مرتبہ کلمہ کفریہ بھول گیا اور اسی پر مر گیا، جہنم واجب. ایک عمل 10 کے برابر، ایک عمل 700 کے برابر، ایک عمل کا ثواب کسی کیلکولیٹ میں نہیں. حضرت عثمان ابن عفان نے کہا 10 لوں گا. جب دے اس کو دے دو. سیدنا ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے 1 کا 10، تو آپ مجھے لکھ دو. اللہ آپ کو 1 کا 10 دے گا تو میں نے آپ کو دے دیا. اور پورا مدینہ صبح سے پہلی ساری تنگی ختم ہو گئی، سارا قحط مدینے کا ختم ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسی رات میں نے خواب میں دیکھا اور فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں عبداللہ ابن عباس نے کہا بہت عبرت کا مقام ہے کہ میں نے رات کو آقا کو دیکھا، عجیب قسم کا لباس جیب تن فرمائے ہوئے تھے اور ترکی گھوڑے پر سوار تھے آقا اور تیزی سے جا رہے تھے. ابن عباس نے کہا آقا تھوڑا انتظار تو کرو، بہت دیر کے بعد دیدار ہوئی ہے، ذرا آپ کا دیدار کروں جم کر، تھوڑا ٹھہرے تو صحیح. کہا نہیں مجھے بہت جلدی ہے. عثمان ابن عفان کا جنت کی ایک حور سے اللہ نے نکاح رکھا ہے جنت میں، اور آج اس کی عروسی کی محفل اللہ نے خود سجائی ہے اور اس میں شرکت کے لیے مجھ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے بلایا ہے اور اللہ نے عثمان کا مال قبول کر لیا ہے. کیسے صحابہ تھے، اللہ نے عثمان کا مال قبول کر لیا. ان کو ڈبل داماد رسول کہتے ہیں. تو 4 چیزیں ہیں، ابدال، قطب، غوث، اب چوتھا خواجہ. خواجہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، لیکن خواجہ کا سر کھیل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمت اللہ علیہ. خالی اتنا کہہ دوں ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ ایک غریب مسلمان تھا، معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں تھی، کسی سے قرضہ لیا تھا، دینے کا وقت آ گیا تھا نہیں کچھ. ایسا ہی واقعہ ایک صحابی کا بھی ہوا تھا آقا کے ٹائم میں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی 6 بہنیں تھیں، 6 بہنیں، کل 9 بیٹیاں تھیں عبداللہ انصاری کی. 3 شادی ہو گئی، 3 باقی، اور عبداللہ کا انتقال ہوا، جابر بھائی باقی ہے. 6 بیٹیوں کا 1 بھائی، 6 بہنوں کا 1 بھائی. قرضہ باپ بہت چھوڑ کر مرا تھا، بہت قرضہ. ہم کہتے ہیں لیتی دیتی ہو تو مل لے. بہت پریشان کہ اللہ 6 بہنیں ہیں، ان کو گھر میں بڑھانی ہے، باپ اتنا قرضہ چھوڑ کر مارا، کچھ ہے نہیں. کھجور کا باغ پکا. آقا سے کہا آقا باپ بہت قرضہ چھوڑ کر مارا، احد میں شہید ہو گیا آپ کے یہاں، اب میرے پاس کچھ نہیں، یہ کھجور کا باغ پکا ہے، لوگ قرضہ مانگنے والے یہودی ہیں اور ان سے میرے باپ نے لیا تھا، وہ تو مر گیا، میرے باپ کی امانت ہے، مجھے ادا کرنی ہے، تو یہ سب آ جائیں گے. تو آقا ذرا آپ آ جائیں
तो मेरे साथ ये सख्ती न करे, नरमी का मामला करे, मुझे दे देना है, मेरे बाप का कर्जा चुका देना है, लेकिन आप हाजिर रहें ताकि कोई सख्ती मेरे साथ न करे मांगने में। इसलिए आका ने फरमाया जिस पर किसी का कोई कर्जा हो और वो उसको मोहलत दे दे, सहूलत बढ़ दे, तो जन्नत के बीचों बीच अल्लाह उसका मकान बना देंगे। मुसलमान की एक सहूलत दी। आका ने फरमाया ठीक, तेरे जितने बाग में खजूर है अलग अलग दिगला करियो, अंबर का अलग दिगला, अजवा का अलग दिगला, कलबी का अलग दिगला कर, ढेर कर। आका तशरीफ ले गए, एक दिगला बड़ा था, आका ने फेरा फेरा, बुखारी भी रिवायत, फिर बैठ गए और कहा जाबिर तेरे कर्ज था कितने हैं, लाओ एक एक। और रिवाज ये था कि जब खजूर का बाग पकता है, जैसे मांडवी का खेत बना है तो मांडवी बाहर खलियान में डाली है, तो जिसने मांगता है मांगना वाला आएगा लेने के लिए, तो एक एक करके आ जाओ। आका ने तकसीम शुरू की, एक एक को अदा कर दिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमाता है मैंने नियत कर ली थी कि अल्लाह की कसम मेरी बहन को एक खजूर की पेशी चखाऊंगा नहीं जब तक कि मेरे बाप का कर्जा उतार न दूं, कि मेरे बाप की अमानत मुझ पर है। ये वफादार औरत, वफादार औलाद ये होती है जो बाप का मांगना बाकी रहने नहीं देती। अब मांगने दो तरह के होते हैं, एक लोगों के, एक अल्लाह के। अल्लाह के मांगने नमाज रोजे ज़कात वगैरह की जो है फिदिया, आका ने तकसीम जरूर किया। उन हाथों में क्या बरकतें हैं, तकसीम हो गया, सबका कर्जा भरपूर, सब फारिग फारिग। जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, वो जो ढेर आका ने तकसीम किया पहले से ज्यादा बड़ा ढेर हो गया, सबका कर्जा चुका दिया और इतना का इतना हमारा खजूर उससे ज्यादा बाकी रहा। वहां आका के दस्ते मुबारक में अनवार और बरकत थे, क्या नेमतें थी। तीन मसले मालूम हुए, दिल में नीयत हो न तो कर्जा चुका दिया जा सकता है, और दिल में नीयत हो तो आसान है, और नीयत अज न हो लेने देने की तो कभी भी, जैसे नीयत ऐसे मामला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते हैं? मैंने खुद इनकी सीरत लिखी है, ख्वाजा गरीब नवाज किताब का नाम मैंने दिया है, 69 सफ़े में है गुजराती में। मैं पढ़ता था तब मैं मवाद जमा करता था, और पढ़ाने के टाइम में मैंने उसको लिखा था। कुल मैंने हाथ से 19 किताबें लिखी है, लेकिन बड़ों के नाम में उसमें मैंने डाल दिए हैं, उनके नाम मंसूब कर दिए। और कोई इसाले समाज के लिए खड़ा होता तो उसके नाम से वो किताब छप जाती। अभी गुनियत तालिबीन की भी मैं तरतीब देता हूं, लेकिन वक्त तो कम मिलता है, जल्दी काम होता नहीं। तो ख्वाजा साहब के पास आया, मेरी सिफारिश कर दो, इसलिए कि ये जो हाकिम है ना वो आपका मुरीद है, जिसके पास मेरा मसला है ना वो आपका मुरीद है। आप चिट्ठी लिख दोगे, वो कर्जा सरकारी था, पर अगर आप चिट्ठी लिख दोगे तो वो आपका मुरीद है और उसको मुझे कर्जे की भरपाई करनी है, लेकिन सहूलत कर दे। तो ख्वाजा साहब चिट्ठी लिख देते, लेकिन बहुत 3 दिन का सफर था, सफर तय करके गए और दिल्ली पहुंचकर अजमेर से दिल्ली का सफर किया। तो वो मुरीद ख्वाजा साहब को देख करके हक्का बक्का रह गया, क्योंकि शेख आ गए और ये तो मुरीद था। अपने शेख को देख करके परेशान परेशान, बगैर इत्तिला के हजरत जी कैसे आ गए? तो कहा कोई बात नहीं है, हजरत फरमाइए। कहा गरीब मुसलमान है, टैक्स वधारे हैं, इसकी आवक भी इतनी नहीं है, और मेरी सिफारिश इसके बाबत कबूल कर ले और इस पर जरा सहूलत भी कर दे, और इसकी आवक के मुताबिक टैक्स वसूल कर और ज्यादा वसूल मत कर। तो कि हजरत जी ये आप चिट्ठी लिखकर भी काम कर सकते थे। तो कहा मुझे मालूम है, मैं चिट्ठी और संदेशे से भी काम कर सकता था, काम हो जाता, लेकिन मैं गरीब का वो दिल जीत न सकता था जो मैंने ये करके गरीब का दिल जीता है। ये बड़े लोग थे जिनके नाम पर हम रोटियां और बोटियां चुनते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मत के इन तबकात पर करोड़ हाँ करोड़, अरब हाँ अरब रहमतें और अनवार और बरकत का नुज़ुल फरमाए, और हम सबको खुदावंद कुद्दूस इन सालिहीन उम्मत की महब्बत नसीब फरमावे, अज़मत नसीब फरमावे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी सुनन और इनके तरीकों की
ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرماوے۔ یہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج 40 دن کی یہ مجلس رکھی گئی۔ اولاد اپنے باپ کے بابت فکر مند ہوتی ہے، ہر انسان کے مرنے کے بعد مغفرت کا سامان ہو جائے، یہ کہنا سننا ہم ایک لمبا اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کو مضمون بناتے ہیں، پھر اس کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی خیر کا کلمہ، کوئی خیر کا کلمہ کبھی ہماری حسنات میں کام آ جائے اور میزان کا ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے اور اللہ جنت دے دے۔ بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی خیر اللہ کو پسند آ گیا اور اس پر مغفرت ہو گئی، اسی لیے کہنا سننا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کو کوئی شمع خیر، کوئی ادا پسند آ گئی اور مرحوم کی مغفرت ہو گئی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو علیگن میں داخل فرمائے۔ آپ نے بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ اور بہت ہی دل جمعی اور عظمت کے ساتھ بات سنی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک ہیلا ہے، بہانہ ہے کہ آخرت میں انشاءاللہ اس پر بھی نجات ہو جائے گی۔ کوئی ادا مسلمان کی کوئی پسند کر لے اور اللہ اس کو پسند کر لے تو ادا پر بھی خدا مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کی عزت اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے۔ ایک مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں ایک مرتبہ درود پڑھ کر عالم کے مرحومین مسلمین کے نیت کر کے بخش دو، انشاءاللہ وظیفہ پورا ہوتے ہی سب کی قبر میں ایک ایک قرآن پہنچے گا۔ ماشاءاللہ یہ ان کے رشتہ داروں نے قرآن شریف 5 ختم کی، یاسین شریف 41 مرتبہ، سورہ ملک 41 مرتبہ، سورہ جمعہ 41 مرتبہ، سورہ عہد نامہ 41 مرتبہ، آیت الکرسی 41 مرتبہ، اور کل میں جو ہیں 1,22,000 مرتبہ۔ ماشاءاللہ اصل یہی مرحومین کو کام آتا ہے۔ آنے جانے والے گھر پر لوگ اس طرح وظیف یہ پڑھ لے، بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ پڑھ لے اور پڑھ کر بخش دیا جائے، اسی لیے ہمارا جانا آنا ہوتا ہے۔ لیکن جانے آنے میں اوقات کی رعایت کریں۔ میں عام طور پر یاسین کے ختم کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن کا دل ہے اور چند رکوعات ہیں، تھوڑی دیر میں فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو پڑھ لیا پورے قرآن کا دل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم لك الحمد ملء السماوات ولك الحمد ملء الارض ولك الحمد ملء ما شئت من شيء بعد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين ويا ذا القوة المتين ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والے انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے مخلص بندے ہیں، اے اللہ یہ تجھ سے محبت کرنے والا مجمع ہے، تیرے نبی کی کلام کی عظمت دلوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کتنا دو زانوں بیٹھ کر تیرے مقدس گھر میں تیرے نبی کے مقدس ارشادات کو صالحین امت کی یادیں زندہ ہوئی۔ ہمارے بڑے اکابر سادات خاندان کے کہا کرتے تھے کہ تو جو یہ اکابر کی سیرت بیان کرتا ہے اس کو بیان کرتے رہنا، اس لیے کہ لوگ عام طور پر اس کو بھول جایا کرتے ہیں۔ اے اللہ وہ قبروں میں چلے گئے، ان کی ان نصیحتوں سے آج ہم فائدہ اٹھا کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے ہماری اصلاح کی، جنہوں نے ہمارے لیے خیر کے کلیمے کہے، یہ مقدس مجمع کوئی کسی کی آنکھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اے اللہ تیرے نام پر گردنیں جھکی ہوئی ہے، یہ مبارک چہرے نبی کی پیاری سنتیں اے اللہ اپنے چہروں میں لگائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ مقدس مجمع ہے جو عظمت کے ساتھ تیرا کلام اور تیرے نبی کا کلام سنتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہے ربیع کا جس میں آقا تشریف لے آئے ہیں۔ اے اللہ ان سارے انوار اور برکات اور خیر کے یہ سارے ذرائع جمع ہو گئے ہیں، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو علیگن میں داخل فرما دے،
انہیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے. اے اللہ ان کے اولاد میں اپنے باپ کے نیک صفات منتقل فرما دے. ارحم الراحمین ان خاندانوں میں منتقل فرما دے. اے اللہ اس بستی کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں مخدوم العلماء حضرت مخدوم جہانیہ سکندر علیہ رحمت ترمذ سے آ کر آرام کرتے ہیں. اے اللہ بابا یاسین سوری سورا ترمذ سے آ کر آرام کرتے ہیں. اے اللہ یہ وہ خطہ ہے جہاں واحد علی شاہ آرام فرماتے ہیں. اے اللہ کہیں خواجہ سیرانی آرام کر رہا ہے. اے اللہ کہیں جمیل احمد داتار چلہ کشی کر رہا ہے. اے اللہ کہیں حاجی پیر اتنے دور دراز مقامات سے آ کر کے آرام کر رہے ہیں. اے اللہ یہ خطوں کے کھونٹے ہیں جو ان خطوں کو جمائے ہوئے ہیں. رب العالمین مالک ذوالجلال والعزت تو انوار کی کیا بارش ان پر کر رہا ہے کہ 7 صدیاں گزرنے پر بھی آج ان کی یادیں زندہ ہے. ہم ان کے تذکرے اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری نسل ان کو یاد رکھے، ورنہ یہ تو بہت بھولنے والی قوم ہے. مسلمان بہت بھولنے والی قوم ہے. ان کو تو صحیح تعلیم اور نالج ہی نہیں. آج پوری تعلیم کا طریقہ بدل گیا ہے. اے اللہ روحانیت ان سے زندہ ہے، سکون ان سے قائم ہے، چین ان سے آباد ہے. اے اللہ یہ ہمارے اسلاف کوئی ترمذ سے، کوئی سورا سے، کوئی عراق سے سفر کر کے یہاں آئے اور ہمارے خطے میں آرام کرتے ہیں. کیا ضرورت تھی ترمذ سے آنے کی؟ کیا ضرورت تھی عراق سے آنے کی؟ اے اللہ اس علاقے کے صبح قیامت تک کے مسلمان ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں. ان کا احسان ہماری گردنوں پر قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ہماری نسلوں کو توفیق دینا کہ ان کو یاد رکھے. اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا اپنے دربار میں قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، وبائی مرض کو ختم فرما، تعلیم کی شکلیں آباد فرما. اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے ان کے محنتوں سے، ان کے اصرار سے باتیں کہی گئی سنی گئی، ان تمام کو بھی جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ اس گھر میں برکتیں اور سکون عطا فرما. تمام مسلمانوں کو آسائی سے نصیب فرما، تنگیوں سے نکال دے، روزی کی تنگی سے نکال دے، سب کے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھول دے. اللہ ہمارا جوان ہاتھ نیچا رکھ کر کے زندگی گزارنا نہیں چاہتا، یہ اوپر کا ہاتھ بن کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے. کسی کے لقمے دسترخوان کے چن کر کے زندگی بسر کرنا نہیں چاہتا ہے، اپنا دسترخوان وسیع کر کے کھلانا چاہتا ہے. اس لیے کہ اس زمین میں تیرے نیک بندوں نے 500 کو کھلایا ہے ایک ٹائم میں. اس لیے یہ ان کی اولاد ہے جو کسی کے دسترخوان کے ٹکڑے چننا نہیں چاہتے. اے اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں کسی کے دسترخوان کے ٹکڑے چننے کے بجائے ہمارے دسترخوانوں کو وسیع کرنے والا رزق دے دے. دعا قبول فرما لے. ہماری دعا کو اس خطے کے صالحین امت کے صدقے میں، پیارے آقا کے صدقے میں، حسنین کریمین کے صدقے میں، اس مجمع کے کسی محبوب ادا کے صدقے میں، کسی اچھے کلیمے کے صدقے میں، اس پرسکون فضا کے صدقے میں، اس مقدس گھر کے صدقے میں جہاں تیرا نور برس رہا ہے، جہاں تیری تجلی نازل ہو رہی ہے، قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک. تمام حضرات روزہ کھول کے جائے.
Alejandro,